जो खबर आ रही है मेरे पाकिस्तानियों, जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अगर यह खबर दुरुस्त साबित हुई तो जर्नैलों के लिए बहुत बुरा वक्त शुरू होने जा। इसका मतलब यह होगा कि आलमी ताकतों की सफबंदी किसी और तरफ जा रही है। इसका मतलब यह होगा कि एक ऐसा मुल्क जिसमें पहले स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखना चाहते थे जनरल, और उसके बाद उसको इस्तेमाल करके डॉलरी जंग शुरू करना चाहते थे, वो सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। एक ऐसी बड़ी खबर है। पुरानी कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में यह बात पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जमकर तारीफ की है। Said what we all know is true, which is that if President Obama pulled the tariffs that Trump is now putting in place, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रम्प के खुद के लोग उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रम्प सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर। We look out at the world in 2025, we see a global stage that's more complex, more connected, and more competitive than ever before. And in the middle of that stage, we see two great democracies. The United States of America and the Republic of India, both nations proud, both nations diverse, both nations with dreams as big as the world itself. Now, folks might be asking, why is India standing up to the United States? Why now? Why here? Well, the answer isn't about hostility or rivalry for rivalry's sake. It's about maturity. It's about a nation that has grown in confidence, in capability, and in conviction. For decades, India's economic rise has been steady and determined. It's become a hub of innovation, a global supplier of technology, pharmaceuticals, and talent. And when a nation reaches that point, when it can feed its people, educate its youth, launch its satellites into orbit, it begins to see itself not as a follower in the world order, but as a shaper of it. There's also a matter of geography and history. India sits at the heart of Asia, surrounded by opportunities and challenges that the United States can't fully experience from across the ocean. That means when India speaks up about regional security, trade routes, or the rules of technology and energy, it speaks with the authority of one who lives in the neighborhood. But let's be clear. Standing up doesn't mean walking away. It means engaging on equal terms. It means saying, we respect you, but we will chart our own course. And in a healthy international community, that's a good thing. It forces all of us. Thank you. आलमी सतह पे पढ़ने पर एक और चीज सामने आई कि अब एक वेस्ट बोला करता था इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन का मतलब यह हो गया पढ़ने पे और सुनने पे कि इट इज नॉट अ थ्रेट। अगर भारत कसौटी पर खरा उतर गया, ये इम्तिहान पास कर गया, तो ये जो हफ्ता है या जो महीने बीत रहे हैं ना, आने वाले वक्त में एनालिस्ट और हिस्टोरियंस भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी को लेकर इस पीरियड को गोल्डन लेटर्स में लिखेंगे। if Obama did this, the right would be saying, this is India's growing economic strength and self-reliance in 2025 are not sudden phenomena. They are the result of decades of calculated policy, societal transformation, and resilience in the face of global pressures. To understand why this economic rise has translated into greater independence from the United States, it's necessary to look at how India's economic journey has evolved, how its domestic capabilities have matured, and how global economic trends have shifted the balance of power. In the टोला लेड बाय मोदी साहब, ये तो कैरेक्टर्स हैं, ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनकी मंशा पैदाइशी यही है, जिनका वो जो उस दिन भी मैंने इस्तेमाल किया था रेजॉन डिटर जो है ना, वो यही है। इनकी रीजन ऑफ बीइंग यही है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ नीचा दिखाना है, इसके हिस्से बखरे करने हैं, उनका बस चले तो श्रेडर में डाल दें। तो ऐसा आदमी फिर वो कुछ ना कुछ करके दिखाता है। तो ठीक है, इसका सामना ये हाफिज साहब की बदकिस्मती है कि इस तरह का कैरेक्टर उन्हें मिल गया। अच्छा, पाकिस्तान पे हम आएंगे कुछ देर के बाद, ठीक है।
पहले मुझे ये बताएं कि लेट्स क्या लुक एट द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर। अच्छा, मुझे ये बताएं पहले, ये मेरी थ्योरी है और बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ भी हो सकती है। क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 है जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि एक मिनट, ये जैसे फर्ज करें हम 100 साल पहले लोग बैठ के सोचते होंगे कि हम इस स्पेन में बैठे हैं तो यार यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, बाद में पता चला कि ये तो कहीं पूरी दुनिया की बड़ी जंग थी। कि ये बड़ी जंग है जिसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ, अफ्रीका, ये जो साहिल की बेल्ट है वहाँ पे कूज हो रही हैं, ये रेड सी के अंदर हो रहा है, ये साउथ चाइना सी, गजा में आगे, ये एक है सारा सिलसिला, या आप देखते हैं कि ये अलग अलग हैं, ये कनेक्ट होती हैं डॉट्स? कुछ हद तक कनेक्ट भी होती हैं। वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया में 100 साल के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है पावर के हवाले से, और वायलेंट है और कुछ एरियाज में वायलेंट है, और कुछ एरियाज में इक्तिसादी है, सियासी है, सफारती है। तो वो जंग की नौयत सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने गोली मारनी होती है या ये बॉम्बिंग करनी होती है। जंग की नौयत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है। तो वो जो है, क्योंकि इस वक्त एक दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है ताकत का। देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, अल्लामा इकबाल ने कहा था 90 साल। पहली दफा 300 साल में एक नॉन वाइट नॉन वेस्टर्न पावर खड़ी हो गई है जो अमेरिका की और मगरब की बालादस्ती को चैलेंज कर रही है, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में चैलेंज कर रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब अमेरिका में ही ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका के कई लोगों ने उन्हें समझाने की प्रयास किए कि भारत से दुश्मनी अच्छा नहीं होगा अमेरिका के लिए, और भारत इस दुश्मनी से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। अब इस सब के बीच में दोस्तों, बराक ओबामा भी अब इस टैरिफ युद्ध में खुलकर सामने आ गए हैं। दोस्तों, ये अमेरिकी मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको देखने को मिला कि किस तरह से बराक ओबामा ने ट्रंप को धो दिया है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये डिसीजन अमेरिका के लिए काल साबित होगा। अगर जल्द से जल्द भारत को इससे निपटा नहीं गया तो भारत आने वाले समय में अमेरिका पर कभी विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर भी करें। वो तो कहेंगे हमारी तो ये अमेरिकन सेंचुरी थी। अच्छा, हमारा 100 अच्छा आप नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि 2 पावर्स लड़ रही हैं ना, और बाकी पावर्स के 2 पावर्स मिडिल पावर्स एक पावर्स पावर जो कायम थी उसका जवाल शुरू हो गया, स्लो मोशन, यानी कि मगरब और अमेरिका। तो बड़ी जंगें ऐसी होती हैं ना, एक सल्तनत टूटती है, उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया ऐसे जंग अब अमेरिका नहीं जीत सकता। और अमेरिका ने जो जंग हॉट वॉर, हाँ हॉट वॉर, मैं हॉट वॉर की बात कर रहा हूं। ये स्टडी आई है डॉक्टर साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, प्रोफेसर ग्रेहम एलिसन की। उन्होंने 5 डिफरेंट वॉर सिनारियोस किए हैं कि ताइवान पर जंग हो तो क्या 5 दफा अमेरिका हारता है। और अमेरिका ने कोरिया की जंग भी नहीं जीती, वियतनाम में हारा, अफगानिस्तान में हारा, इराक। अमेरिका हैज नेवर वन अ लैंड वॉर इन एशिया। और अब जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, प्रोफेसर ग्रेहम एलिसन है उनका नाम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के प्रोफेसर हैं। 5 मुख्तलिफ सिनारियोस का है कि अगर जंग होती है अमेरिका की तो ये होगा, और 5 दफा अमेरिका हारता है।